Dear students, how are you? I hope you are all well. Let's start chapter 13, statistics, without more footage. Dear students, in this chapter we will learn about mean, mode and median. I repeat, mean, mode and median. Mean of group data, mode of group data and median of group data. First we will get some basic information, some basic formulas, and then our journey will ahead. Mean or average. What is the meaning of mean? Look over to here. Mean. It is denoted by X bar. Mean is the sum of the value of all observations divided by the total number of observation yes, this is the definition. Mean is the sum of the value of all observations divided by the total number of observations. Yeah. There are three methods to obtain mean or average. The direct method, the assumed mean method, and third one, the step deviation method. Formula. फॉर्मूला पहले नहीं लिखेंगे, देखते हैं. There are three methods to obtain mean or average. Okay, first the direct method. ठीक है ना? Okay. The direct method. Formula of this method: x bar is equal to sigma fi xi upon sigma fi. So here is I is equal to 1, 2, 3 to n, and sigma fi, total frequency or total number of observation. Okay. Second one, the assumed mean method. Okay, here x bar equal to a plus sigma fi di
upon sigma fi. Okay, assume the mean method here is a is equal to assume the mean. Here a is equal to assume the mean. di is equal to xi minus a. xi is equal to observation minus assume the mean. ओके, आगे हम जब कैलकुलेशन करेंगे उसमें देखेंगे हम, ठीक है? ओके, एंड नाउ थर्ड, step deviation method. X bar is equal to a plus sigma fi ui upon sigma fi into h. A, it is already assumed the mean. ui, a is equal to assume the mean. ui is equal to xi minus a divided by h, and h is equal to class length. ओके, देखेंगे हम सिग्मा एफ आई जो है वो फ्रीक्वेंसी का टोटल है, ठीक है? देखेंगे ये तीन मेथड जो हैं वो एवरेज निकालने के लिए है। वैसे तो और भी मेथड्स हैं टू ऑब्टेन मीन, लेकिन वो हम अगले स्टैंडर्ड में पढ़ेंगे 11th 12th में और आगे भी, ठीक है? लेकिन इन दिस चैप्टर वी विल लर्न अबाउट दिस थ्री मेथड्स. The chapter is very interesting. Okay, so I think you know very well about mean is the sum of the value of all observations divided by the total number of observations. मान लीजिए 11 क्रिकेटर ने मिलकर 220 रन बनाए हुए हैं. तो यहाँ पे 11 क्रिकेटर है और 220 रन है, तो एवरेज ऑफ रन्स जो हैं वो क्या आएगा? तो 220 डिवाइडेड बाय 11, यानी कि 220 बटा 11 इक्वल टू 20, यानी कि 20 रन. 20 रन जो है वो क्या है? मीन है. तो यहाँ पे 220 जो है वो है द सम ऑफ द वैल्यू ऑफ ऑल ऑब्जर्वेशंस, ठीक है? और डिवाइडेड बाय 11, वो क्या है? 11 क्या है? तो भाई टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस, ठीक है ना? देखेंगे हम आगे. ओके, तो ये जो बात है वो एवरेज यानी कि मीन के बारे में है. ये आपको दिमाग में रखना है. ये 3 फॉर्मूला आपको दिमाग में रखना है. और हाँ, ये मीन जो निकाल रहे हैं हम वो ब्रूकर डेरिया का है, ठीक है? तो मान लीजिए कि उसमें क्लास मेजर भी आ सकता है. तो क्लास मेजर में वही उसमें देखेंगे अपर लेवल और डाउन लेवल डिवाइडेड बाय 2, वो उसमें देखेंगे, ठीक है? अभी ये 3 जो है वो फॉर्मूला आपको दिमाग में रखनी है. अब क्या होगा? अब सेकंड वन, मोड, उसमें देखते हैं. नाउ सेकंड, मोड. व्हाट इज द मीनिंग ऑफ मोड? A mode is the value among observations which occurs most often. देखते हैं अभी यहाँ पे, look over to here, mode, and mode is denoted by Z. A mode
is a value among observations which occurs most often. ये मोड की डेफिनेशन है. सेकंड वन हम ये भी बोल सकते हैं, अ मोड is the value of the observation having maximum frequency. A mode is the value of the observation having maximum frequency. और फॉर्मूला जो है वो भी हम देखेंगे. इसकी फॉर्मूलाज जो है, पहले तो जो है ग्रुप्ड डेटा अनग्रुप्ड डेटा, उसी के नतीजे पे हम देखेंगे, उसी के बारे में देखते हैं. फर्स्ट फॉर्मूला जो है वो z इज इक्वल टू, यहाँ पे देखिए कि ऑब्जर्वेशंस विच अकर्स मोस्ट ऑफन, ये अनग्रुप्ड डेटा है. इसके लिए z इज इक्वल टू ऑब्जर्वेशन और द वैल्यू among observations which occurs most often. Otherwise, observation which occurs most often. ठीक है. सेकंड वन, z is equal to the observation having maximum frequency. The observation having maximum frequency. Okay. And now थर्ड वन जो है वो मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी तो हमें मिल रही है, लेकिन ये सब, ये दोनों फॉर्मूला अनग्रुप्ड डेटा के लिए. अब मान लीजिए ग्रुप्ड डेटा है, तो z इज इक्वल टू एल प्लस f1 माइनस f0 अपॉन 2f1 माइनस f0 माइनस f2 इंटू h. ये फॉर्मूला है. अब यहां पे जो हमें शो हो रहा है L, तो L क्या है? ये लोअर लिमिट है. ठीक है, ये लोअर लिमिट ऑफ द मॉडल क्लास है. ठीक है, वेयर, अब इसे भी हम शो करेंगे यहां पे, L इज इक्वल टू लोअर लिमिट ऑफ द मॉडल क्लास. ठीक है, F1 जो है वो क्या है? तो ये फ्रीक्वेंसी है, मॉडल क्लास की फ्रीक्वेंसी है. ठीक है, फ्रीक्वेंसी ऑफ द मॉडल क्लास. अब मैं यहां पे ये बोल रहा हूं मॉडल क्लास, तो मॉडल क्लास किसे बोलेंगे? मॉडल क्लास जो है वो मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी को लोकेट करता हुआ क्लास है. मॉडल क्लास जो है वो मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी को लोकेट कर रहा है. मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी इज लोकेटेड बाय मॉडल क्लास. ठीक है, F0 जो है वो भी फ्रीक्वेंसी है, लेकिन कौन सी फ्रीक्वेंसी? फ्रीक्वेंसी
ऑफ द क्लास अब ये जो है प्रीसीडिंग द मॉडल क्लास है, फ्रीक्वेंसी ऑफ द क्लास प्रीसीडिंग द मॉडल क्लास। ठीक है, फ्रीक्वेंसी ऑफ द क्लास प्रीसीडिंग ऑफ द फ्रीक्वेंसी ऑफ द क्लास प्रीसीडिंग द मॉडल क्लास। ठीक है, मॉडल क्लास जो है उसके ऊपर के क्लास की क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी है। ठीक है, क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी नहीं, सॉरी, मेन फ्रीक्वेंसी। ठीक है, F1, F0 एंड नाउ F2। ये F2 क्या है? ये भी फ्रीक्वेंसी है, फ्रीक्वेंसी ऑफ द क्लास सक्सीडिंग द मॉडल क्लास। ठीक है, फ्रीक्वेंसी ऑफ द क्लास सक्सीडिंग द मॉडल क्लास। ये जो है मॉडल क्लास के नीचे की जो है क्लास उसकी फ्रीक्वेंसी है। ठीक है, और H तो हमें पता ही है, H क्या है? तो ये H जो है वो क्लास साइज है, यानी कि क्लास इंटरवल है। ठीक है, क्लास इंटरवल, ये क्लास इंटरवल बोल सकते हैं, क्लास लेंथ बोल सकते हैं। ठीक है, तो ये हुआ मोड के बारे में इंफॉर्मेशन एंड इसकी फॉर्मूलाज। अब जो है लास्ट वन जो है फॉर्मूला मोड की, ये भी हम देख लेते हैं। ये जो है वो मीन, मीडियन एंड मोड की जो बीच में रिलेशन जो है, ठीक है, उसी की फॉर्मूला है, इंपीरियल फॉर्मूला बोलेंगे हम इसको। ठीक है, z इज इक्वल टू 3m माइनस 2x बार। ठीक है, ये फॉर्मूला भी हमें दिमाग में रखनी है। z यानी कि मोड इक्वल टू 3 मीडियन माइनस 2 इंटू मीन यानी कि एवरेज। ठीक है, तो ये हुआ पूरा बेसिक इंफॉर्मेशन, मीन यानी कि एवरेज, मोड, और इसके आगे जो हम देखेंगे मीडियन, उसके बारे में। ठीक है, अब देखते हैं आगे मीडियन के बारे में। And now third one, median. What is the meaning of median? Median is a measure. The median is a measure of central tendency, which gives the value of the middlemost observation and data. Look over here. Median, and it is denoted by M. Yeah. Median is a measure of central tendency which gives the value of the middlemost observation in data. Yeah. सेंट्रल टेंडेंसी है जो वैल्यू निकाल के दे रही है मिडल मोस्ट ऑब्जर्वेशन की डेटा में जो दी हुई है, वो हम जब प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे उसी में देखेंगे। अभी इसकी फॉर्मूला जो है वो देखते हैं।
फॉर्मूला जो है फर्स्ट n इज इक्वल टू n+1/2 ऑब्जर्वेशन। अब यहाँ पे हमें कंडीशन दिमाग में रखनी है कि वैल्यू निकालने से पहले वैल्यू की वैल्यू निकालने से पहले जितने ऑब्जर्वेशन है वो हमें असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करना पड़ेगा। ओके, मैं नोट लिख रहा हूं। फर्स्ट अरेंज ऑल ऑब्जर्वेशंस in ascending order। ठीक है, हमें पहले असेंडिंग ऑर्डर में हमें अरेंज करना पड़ेगा सब ऑब्जर्वेशन को, बाद में ये फॉर्मूला जो है हम यूज कर सकते हैं। अब यहाँ पे ये भी हमें दिमाग में रखना है कि ऑब्जर्वेशन जो है 1 to n वो ऑड नंबर्स में है या इवन नंबर्स में है। अगर ऑड नंबर है तो ठीक है, यही फॉर्मूला लेके हम चलेंगे। लेकिन मान लीजिए हमें इवन नंबर्स मिल रहे हैं तो उसमें यही फॉर्मूला लगेगी। अब देखिए, इफ n इज ऑड तो ये फॉर्मूला लगेगी, और मान लीजिए इफ n इज इवन, n इज इक्वल टू n डिवाइड बाई 2 प्लस n/2 प्लस 1, n/2 ऑब्जर्वेशन प्लस n/2 प्लस 1 ऑब्जर्वेशन डिवाइड बाय 2। ठीक है, ये 1 ये 2, सो उसका जो एवरेज निकल के आएगा वही मीडियन की वैल्यू होगी। ठीक है, ये जब हम प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे उसी में, लेकिन अभी तो आपको ये प्रिपेयर करना है। ठीक है, अब दूसरी फॉर्मूला भी है, n इज इक्वल टू l प्लस n/2 माइनस CFi अपॉन Fi इंटू h। अब ये जो फॉर्मूला है वो क्या है? L जो है वो लोअर लिमिट है ऑफ मीडियन क्लास। ठीक है, L इज इक्वल टू लोअर लिमिट ऑफ मीडियन क्लास, n डिवाइड बाई 2 माइनस CFi i इक्वल टू 1 to n है, लेकिन CF क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी। ठीक है, डिवाइड बाय फ्रीक्वेंसी, ये फ्रीक्वेंसी कौन सी आई? वही मीडियन क्लास की ही आएगी। ठीक है, और h जो है वो क्लास इंटरवल है या क्लास साइज है। ठीक है, अब क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी क्या है? यही वो फ्रीक्वेंसी है जो L के ऊपर की जो क्लास है, मीडियन क्लास जो है उसके ऊपर की फ्रीक्वेंसी, इन शॉर्ट एडिंग फ्रीक्वेंसी जो है वही है। वो हम देखेंगे, उसी में देखेंगे कि कैसे ये क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी निकल के आ रही है। मीडियन क्लास की जो फ्रीक्वेंसी है वो ऊपर लोअर लिमिट की जो फ्रीक्वेंसी के ऊपर का क्लास जो है वही प्लस होके जो बन रहा है वही क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी है। क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी इज द फ्रीक्वेंसी दैट एडिंग द फ्रीक्वेंसी ऑफ ऑल ऑब्जर्वेशंस। ठीक है, ये जो ऑब्जर्वेशन की जितनी फ्रीक्वेंसी है वो ऐड होके आ रही है तो वही क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी है। ठीक है, वो उसमें देखेंगे हम।
जब क्लास वो प्रॉब्लम जब सॉल्व करेंगे उसमें ही क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी आएगी। तो ये जो है फॉर्मूला हमें कंप्लीट करनी है। ये मीडियन की जो है डेफिनेशन है, ये फॉर्मूलाज है। और हाँ, अब मान लीजिए मीन और मोड और मीडियन ये तीनों के लिए जो हमें इंपीरियल मिल रहा है जो फॉर्मूला, वो क्या है वो भी हम देखते हैं। मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ z इज इक्वल टू, यानी कि मोड, ठीक है, मोड इज इक्वल टू 3m माइनस 2x बार। अब ये फॉर्मूला जो है वो हमें आनी ही चाहिए, ठीक है, ये भी हमें दिमाग में रखना है। ये रिलेशन जो है बिटवीन z, m और x बार का रिलेशन शो करता हुआ ये फॉर्मूला हमें दिमाग में रखना है, ठीक है। शॉर्ट कैलकुलेशन में ये भी हमें इंपॉर्टेंट हो सकता है, यूजफुल हो सकता है, ठीक है। अब हम एक्सरसाइज में आगे बढ़ेंगे, ठीक है।